کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہو کہ سامنے والا شخص آپ سے کچھ چھپا رہا ہے؟ کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آیا آپ کا دوست، ساتھی یا کوئی بزنس ایسوسیٹ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کاش آپ کے پاس وہ طاقت ہوتی جو سامنے والے کے ذہن میں چل رہے حالات کی سرگوشیوں کو سن سکتی؟ یقین جانیے، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ معلومات کا دور ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کا دماغ اب بھی اس کائنات کا سب سے پیچیدہ اور پراسرار آلہ کار ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں برس کے ارتقاء کے بعد انسانی دماغ نے کچھ ایسے شارٹ کٹس بنائے ہیں، کچھ ایسی ڈیفالٹ سیٹنگز جنہیں سمجھ کر آپ نہ صرف لوگوں کے جذبات اور ارادوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں ان کے خیالات تک کی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، نہ ہی کوئی مافوق الفطرت طاقت ہے، یہ تو محض سائنس ہے، نفسیات کی وہ دلچسپ شاخ جو انسانی رویے کے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج ہم اس سفر پر نکلیں اور ان 6 نفسیاتی ٹیکنیکس سے آشنا ہوں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ یہ صرف ٹرکس نہیں ہیں، یہ وہ کلیدیں ہیں جو دوسروں کے ذہنوں کے تالے کھول سکتی ہیں۔ تو آج آپ سیکھیں گے انسانی ذہن کو پڑھنے کے وہ طریقے جو آپ کی روزمرہ زندگی میں ایک سپر پاور کی مانند کام کریں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہماری پہلی اور سب سے اہم نفسیاتی ٹیکنیک سے آغاز کرتے ہیں۔ ٹیکنیک نمبر 1، آنکھیں۔ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، مگر میں یہ کہوں گا کہ آنکھیں صرف دل ہی نہیں بلکہ پورے ذہن کا آئینہ ہیں۔ قدیم زمانے سے ہی مصنفین، شاعروں اور فلسفیوں نے آنکھوں کی ایسی پراسرار طاقت کا ذکر کیا ہے۔ ولیم شیکسپیئر نے لکھا تھا، "دیر از لینگویج ان ہر آئی، ہر چیک، ہر لپ"، یعنی اس کی آنکھ، اس کے رخسار، اس کے ہونٹ سب کچھ بول اٹھتے ہیں۔ لیکن کیا جدید سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے۔ آئیے ایک دلچسپ تحقیق پر غور کرتے ہیں۔ نیورو سائنس کی دنیا میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسانی آنکھوں کی حرکات کا براہ راست تعلق ہمارے دماغ کے ان حصوں سے ہے جو مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ جب ہم کوئی بات یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بائیں جانب مڑتی ہیں، اور جب ہم کوئی نئی بات گڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں دائیں جانب مڑتی ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ہمارے دماغ کی ساخت کا ایسا ہے۔ اب ہم عملی طور پر اسے کیسے استعمال کریں؟ تصور کیجئے کہ آپ اپنے کسی دوست سے کوئی سادہ سا سوال پوچھتے ہیں، جیسے کل رات تم نے کیا کیا؟ اگر وہ جواب دیتے وقت اپنی نظر اوپر اور بائیں جانب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی یادداشت سے کل رات کے واقعات کو ریپلے کر رہا ہے، وہ سچ بول رہا ہے۔ لیکن اگر وہ جواب دیتے وقت اپنی نظر اوپر اور دائیں جانب کرتا ہے تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ وہ ایک نئی کہانی گھڑ رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن مطاعت رہیے، یہ ایک آفاقی اصول نہیں ہے۔ کچھ لیفٹ ہینڈڈ افراد میں یہ عمل بالکل الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے کسی عام بات چیت میں اس شخص کے بیس لائن رویے کو نوٹ کر لیں، یعنی وہ عام طور پر کس طرف دیکھتا ہے۔ پھر جب آپ کو لگے کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے تو اس کی آنکھوں کی حرکات کا موازنہ اس بیس لائن سے کریں۔ ایک اور اہم نکتہ، اگر کوئی شخص بات چیت کے دوران مسلسل اپنی نظریں یہاں وہاں گھما رہا ہے، زمین یا چھت کو دیکھ رہا ہے تو یہ بے چینی، جھوٹ یا بات سے بیزاری کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ وہ فائٹ اور فلائٹ رسپانس ہے جو ہمارے قدیم دماغ نے خطرے کے وقت میں تیار کیا تھا تاکہ ہم ارد گرد کے ماحول میں کوئی راستہ یا خطرہ تلاش کر سکیں۔ تو یاد رکھیے، آنکھیں آپ کا پہلا اور طاقتور ترین ہتھیار ہے، انہیں نظر انداز مت کیجیے۔ ٹیکنیک نمبر 2، ہاتھوں کی حرکات۔ اب ہماری توجہ ایک اور ناقابل یقین اعلی کار ہمارے ہاتھوں کی طرف ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی لینگویج کا 60 سے 70% ایسا ہمارے ہاتھ اور بازو ہی بناتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ ہماری سوچ، ہمارے جذبات اور ہمارے ارادوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو عظیم مقررین جیسے مارٹن لوتھر کنگ، ایڈولف ہٹلر یا ہمارے اپنے قائد اعظم سب ہی ہاتھوں کے اشاروں کے ماہر تھے۔ ان کی تقاریر کی طاقت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں کی حرکت میں پنہاں تھی۔
ये हरकत न सिर्फ सुनने वालों के दिलों में उतरती थीं बल्कि उनके लाशऊर को भी मुतासर करती थी। अब आते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसके हाथ खुले हुए हैं, हथेलियाँ आपकी तरफ हैं, तो ये एतमाद, दयानतदारी और दिलचस्पी की अलामत है। ये गोया कह रहा है, देखो मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी बात में दिलचस्पी रखता हूँ। लेकिन अगर सामने वाला शख्स अपने हाथों को बांध ले या इन्हें अपनी जेब में डाल ले या फिर अपनी बगल में बंद कर ले तो ये दफाई रवैया है। ये बेचैनी, अदम तफ़्फ़ुज़ या बात में अदम दिलचस्पी को ज़ाहिर करता है। वो अपने आप को समेट रहा है, एक दीवार खड़ी कर रहा है। एक और दिलचस्प इशारा, अगर कोई शख्स बात करते वक्त अपनी हथेलियाँ मुसलसल रगड़ रहा है तो ये तवक्को या इश्तियाक की अलामत हो सकती है, जैसे कोई ताजर जब किसी डील के बारे में सोच रहा हो। लेकिन अगर यही हरकत बहुत तेज़ी से हो तो ये घबराहट की भी निशानी हो सकती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उसके हाथों पर नज़र रखें। वो आपको इस शख्स के बारे में वो सब कुछ बता देंगे जो वो अल्फाज में बयान करने से कासर है। टेक्निक नंबर 3, मुस्कुराहट। ये दुनिया की वाहिद ज़ुबान है जिसे हर कोई समझता है। ये तलकात बनाती है, गुस्से को पिघलाती है और फासले मिटाती है। लेकिन क्या हर मुस्कुराहट असली होती है? बदकिस्मती से नहीं। दर हकीकत तहकीक बताती है कि हमारी रोज़मर्रा की 90% मुस्कुराहटें समाजी मुस्कुराहटें होती हैं, यानी वो जो हम सिर्फ लोगों से मिलते वक्त रस्मी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असली और नकली मुस्कुराहट में फ़र्क कैसे करें? इसका जवाब हमें फ्रांसीसी न्यूरोलॉजिस्ट गियोम डुचेन ने 19वीं सदी में दिया था। उन्होंने दरियाफ्त किया कि एक असली हकीकी मुस्कुराहट जो खुशी के जज्बे से पैदा होती है वो सिर्फ होंठों तक महदूद नहीं रहती। इसमें आंखों के इर्द गिर्द के पट्टे भी फाल हो जाते हैं, जिससे आंखों के किनारों पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। उसे डुचेन मुस्कुराहट कहा जाता है। दूसरी तरफ एक नकली या मुस्नुई मुस्कुराहट सिर्फ होंठों के पट्टों को हरकत देकर बनाई जाती है। आंखें बेजान और बेअसर रहती हैं, वो डेड फिश आई का तअस्सुर देती हैं। असली मुस्कुराहट आमतौर पर 7 से 8 सेकंड तक रहती है, जबकि एक नकली मुस्कुराहट 4 से 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं चल पाती। असली मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर फैलती है और आहिस्ता आहिस्ता ही गायब होती है, जबकि नकली मुस्कुराहट अचानक आती और जाती है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसे आजमाएं। जब आप किसी से मिलें उसकी मुस्कुराहट पर गौर करें। क्या उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही हैं? क्या उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही है, या फिर ये सिर्फ होंठों की एक बेरूह हरकत है? ये छोटी सी मशक आपको लोगों के हकीकी जज्बात को समझने में मदद देगी। टेक्निक नंबर 4, जिस्मानी हालत और पोस्चर। अब हम बात करते हैं हमारे पूरे जिस्म की। हमारा पोस्चर हमारे खड़े होने और बैठने की कैफियत हमारे बारे में क्या कहती है। कदीम ज़माने में फ़ौजियों की तरबियत में सबसे पहले उनके पोस्चर पर काम किया जाता था। एक सीधा खड़े होने वाला सिपाही न सिर्फ दुश्मन के सामने ताकत का इजहार करता था बल्कि वो अपने एतमाद का भी ऐलान करता था। जदीद नफ्सियात की तहकीक से पता चला है कि हमारा जिस्मानी पोस्चर हमारी ज़हनी हालत पर बराह रास्त असर डालता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक मशहूर तहकीक के मुताबिक अगर आप सिर्फ 2 मिनट तक एक पावर पोज इख्तियार करें, जैसे कि हाथों को कमर पर रखना, तो आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन एतमाद के हार्मोन की सतह बढ़ जाती है और कोर्टिसोल तनाव के हार्मोन की सतह कम हो जाती है। अब दूसरों को समझने के लिए इनके पोस्चर पर गौर करें। अगर कोई शख्स आपकी तरफ रुख किए हुए है, उसका सीना खुला हुआ है, कंधे सीधे हैं और उसके पांव बराह रास्त आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये वाज़ेह अलामत है कि वो आप में मुकम्मल तौर पर दिलचस्पी रखता है। लेकिन अगर उसका जिस्म मुड़ा हुआ है, कंधे झुके हुए हैं और उसके पांव दरवाजे या बाहर निकलने की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये उसकी बेजारी या बेचैनी को ज़ाहिर करता है। वो जिस्मानी तौर पर ही से वहाँ से निकलना चाहता है। एक और नुक्ता, अगर कोई शख्स बातचीत के दौरान अपने हाथों या बाजुओं को अपने सामने क्रॉस कर ले, तो ये एक दफाई पोजीशन है। वो आपसे जज्बाती तौर पर दूर हो रहा है। तो अगली बार मीटिंग में, डेट पर या किसी भी माशरती मेल जोल में लोगों के पोस्चर को नोटिस में लेना शुरू कर दें। ये आपको उनकी अंदरूनी कैफियत का वाज़ेह नक्शा पेश करेगा। टेक्निक नंबर 5, होंठों की बेचैनी।
हमारी पांचवी टेक्निक बहुत ही बारीक बीनी मांगती है, लेकिन ये अंतहाई ताकतवर है। ये हमारे होंठ हैं। होंठ न सिर्फ बोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि वो हमारे दबाव, घबराहट और अंदरूनी कश्मकश को भी जाहिर करते हैं। जब कोई शख्स तनाव में होता है तो उसका जिस्म कई तरह की गैर इरादी हरकत करता है। उनमें से एक होंठों को चबाना या उन्हें अंदर की तरफ खींचना है। ये अमल उस वक्त होता है जब हमारा दिमाग किसी मसले को हल करने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर जब हम झूठ बोल रहे होते हैं और अपने अल्फाज पर काबू पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये एक तरह की सेल्फ सूदिंग या खुद को तसल्ली देने की हरकत है, जैसे बच्चा अंगूठा चूसकर खुद को पुरसुकून करता है। अगर आप देखें कोई शख्स बात करते वक्त बार बार अपने होंठ चबा रहा है या अपनी जुबान से होंठों को तर कर रहा है, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि वो कुछ छुपा रहा है या फिर वो अंतहाई दबाव का शिकार है। एक और अहम हरकत, हाथ से होंठों को ढांपना। अगर कोई शख्स बात करते वक्त या बात सुनते वक्त अपना हाथ अपने मुंह के सामने रख ले, तो ये अक्सर छिपाने की जज्बे की अलामत होता है। वो नहीं चाहता कि उसके अल्फाज या उसके चेहरे के तासरात पूरी तरह जाहिर हों। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम बचपन में छिपन छिपाई के खेल में अपनी आंखें बंद कर लेते थे, ये सोच कर कि अगर हमें दूसरे नज़र नहीं आ रहे तो हम भी दूसरों को नज़र नहीं आ रहे। इन छोटी छोटी हरकत पर तवज्जो दें। ये आपको सामने वाले शख्स की अंदरूनी दुनिया में गहरा झांकने का मौका दे सकती है। टेक्निक नंबर 6, सच्चाई का इम्तिहान। और अब हम आप पहुँचे हैं हमारी आखिरी और सबसे अहम टेक्निक पर। मैं उसे दी अल्टीमेट ट्रुथ टेस्ट का नाम दूंगा। ये कोई अलग जिस्मानी हरकत नहीं है, बल्कि ये उन तमाम चीज़ों का मजमूआ है जो हमने अभी तक सीखी हैं, और उसे एक मखसूस तरीक़ाकार के तहत इस्तेमाल करना है। ये तरीक़ाकार क्या है? ये इंतहाई आसान है। जब आप किसी से कोई अहम सवाल पूछें तो जवाब सुनने के बाद फौरी कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न करें। एक लम्हे के लिए खामोश रहें। इस खामोशी का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप सामने वाले शख्स के फ्लो को तोड़ दें। एक सच्चा शख्स आमतौर पर पुरसुकून रहेगा, उसका जवाब फितरी रफ्तार से आएगा। अगर आप खामोश रहेंगे तो वो शायद समझेगा कि आपने उसकी बात नहीं सुनी और वो अपना जवाब दोहरा देगा, या फिर वो खामोशी से मुतमिन बैठा रहेगा। लेकिन एक झूठा शख्स जो पहले ही घबराहट का शिकार होता है, इस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो समझेगा कि आपको उस पर यकीन नहीं आया और फिर वो एक बड़ी गलती करेगा। वो अपने जवाब को खुद ब खुद ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा। वो ऐसी बातें और तफसीलात शामिल करेगा जो आपने पूछी ही नहीं थी। वो अपनी कहानी में मुसलसल तब्दीलियाँ करेगा। वो बार बार अपनी बात को दोहराएगा। ये ओवर एक्सप्लेनिंग ही उसके झूठ का सबसे बड़ा सबूत है। वो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए इतना कुछ बोलेगा कि आखिरकार अपने आप ही फंस जाएगा। तो अगली बार जब आप किसी पर शक करें, ये आखिरी टेस्ट ज़रूर आजमाएं। एक सादा सा सवाल पूछें, What do you think about that? जवाब सुने और फिर खामोश हो जाएं। देखें कि सामने वाला शख्स इस खामोशी को कैसे हैंडल करता है। उसका रद्द-ए-अमल आपको सब कुछ बता देगा। तो ये थी वो 6 नफ्सियाती टेक्निक्स जो आपको एक ऐसी सुपर पावर से माला माल कर सकती हैं जिसका आपने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। याद रखिए, ये ताकत किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि ख़ुद को और दूसरों को बेहतर तौर पर समझने के लिए है। इन टेक्निक्स को एहतियात, शफ़क़त और ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजमा कर देखें। अपने दोस्तों, ख़ानदान और साथियों के साथ बातचीत के दौरान उन पर गौर कीजिए। आप देखेंगे कि किस तरह इंसानी रवैये का एक पूरा नया बाब आपके सामने खुल जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी मुफीद लगी है तो बराए करम अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से ही बढ़ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।